association rules. I think I've told you association rules, right? In association rules, we were reading about support, right? Support was total number of transactions, right? In which a particular uh, system was the association rule clear to everyone? Okay. Okay. In association rule, two things were there. One was support, and another was confidence, right? Support was if say if B A belongs to the cell of B is associated with cell of A, then support is this case. What was support? Who will tell it? Shanu? Yes, sir. Hello. Yes. बताइए अगर बी एसोसिएटेड है ए से तो सपोर्ट क्या होगा इस केस में? No, I can't hear you. So, so हाँ, 1% support. नो नो 1% वाली बात नहीं है मतलब सपोर्ट होता क्या है बेसिकली आई जस्ट वांट टू आस्क यू. Okay, okay, sir. So support is the entire transactions में सर 1% जो जिन लोगों ने भी मतलब जो ए में है वो लोग बी को भी अप्रोच करेंगे लाइक दैट. देखिए यहाँ पर फॉर परसेंटेज वाली कोई एग्जाम्पल सर. बात नहीं है. परसेंटेज वाली कोई बात नहीं है. सपोर्ट इज इससे आप पूरे ट्रांजैक्शंस में सपोर्ट इज द नंबर ऑफ परसेंटेज in which A and B are bought together. That's it, right? Yes, sir. It is the number of percentage of all the transactions where A and B were purchased together. It was the support, right? Is Okay, it clear? sir. Hence, we Yes, are sir. telling the same thing, same thing. It is more refined, right? Okay, sir. If that support is equal to or more than some specified number, then in that case, the rule is the rule may be interesting and strong, right? And now who will tell confidence? Who will tell it? Swati, Swati कटियार. अब बताएंगी स्वाति. स्वाति will you tell it? सौरभ.
So in two transactions, if there are two transactions A and B, then confidence will be uh, the percentage at which A and B are together uh, to No, 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 when no, no. when You are telling about support. So you are so when explaining support. A You must- हाँ, तो जब सर ए परचेज किया है और सर बी भी परचेज किया है, तो सर जब एक साथ yes. जब आएंगे उनको कॉन्फिडेंस बोलते No, हैं। सपोर्ट कॉन्फिडेंस होता है कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिसमें ए तो परचेज करा गया है और उसके साथ बी भी परचेज करा है। इट इज द percentage of transactions in which A is purchased and B is also purchased, right? मतलब it is P of B given A. Is it clear? It is confidence, right? चलिए एक तो हम आपको भी ट्रांजेक्शन प्रेजेंट कर रहा हूँ। डिफरेंट पैटर्न सबको मालूम थे, ऐसा हो। Support is support is denoted by S. A together, right? And confidence confidence and for both should basically should be equal to or more than right. S and C both should be equal to or more than that of a predefined threshold value that is called minimum support threshold and minimum confidence threshold respectively. Is it clear to everyone? Is it clear? Is it clear? Shanu, Saurabh, clear. Now comes the frequent item set, right? Frequent item set क्या हो रही हैं? आइटम सेट बता सकते हैं आप लोग क्या होता है?
You tell me what is item set? Okay. All the items available are collectively known as item set. Okay, but it is not correct. Right? Item set. Item set is the number of items present in a set. If it is okay, um, there are is it clear? Is it clear to everyone? Just only Avi? No. What is frequent item set? Item set. Who will tell me? Shikhar? 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 Can you tell me? Shikhar? सौरभ? घूम फिर करके मैं 2 4 5 नाम पर ही आता हूँ, अदरवाइज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। सौरभ? So when two commodities or two items are dependent on each other, No, then they no, are it known is as not. frequent. No, 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 no. It is not. Shanu? Shanu? Yes, sir. Sir, Okay. frequently means the items that occur frequently. I mean, Right, like right, right. filming. It is quite clear from the name itself. What is frequent item set? The item set which is frequent. That is frequent item set. That's it. फ्रीक्वेंसी क्या है? ये कई नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं, we call it occurrence frequency, support count, we call it occurrence frequency or support count, right? Or frequency or just count, right? So if
if this frequency or this count is equal to or more than the predefined called okay. Is it clear? Is it clear to everyone? Right. ये सब जो हमने बात करी है अप्रेंस फ्रीक्वेंसी, सपोर्ट काउंट, फ्रीक्वेंसी या काउंट, राइट, इनको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट सपोर्ट। वी आल्सो कॉल इट एब्सोल्यूट सपोर्ट, राइट। ऑल दिस राइट, जो हम लोग पहले सपोर्ट वगैरह की बात कर रहे थे, सपोर्ट इज कॉल्ड रिलेटिव काउंट। इज इट क्लियर? और not relative count, but it is known as relative support, or relative support. Is it clear to everyone? So last point इसका देखिए, if we have, let me have an item set IK having support S and S is greater than the minimum support threshold, then IK will be frequent and it will be denoted by LK, right? Any frequent item set, any frequent set is affected by is it clear? जी समझ आ गई? So
मान लीजिए कि frequent set will be denoted by right. The meaning of association rule. पहला पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा. कॉन्फिडेंस ऑफ ए डिनोट्स बी P of B given A, right? And that will be equal to support of, ये क्या होता है, P of A union B given by और divided by P of A, right? और P of A union B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, support, और P of A को लिख सकते हैं support of A, right? And that will be equal to frequency of A union B divided by frequency of A. ये चीज समझ में आ गई सबको, ये चीज मालूम हो गया है. इसका सेकंड पॉइंट पढ़िए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. इफ एल के then हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है. अब आप इसमें कोई भी, इसका सौरभ आप कुछ बता सकते हैं जो पहली लाइन है इसमें. If LK then LK minus 1, LK minus 2, LK minus 3 like this. Can you explain this line? सर नेट की वो थोड़ा स्लो आ रहा था, इस वजह से स्टॉप हो गया था शेयर करना बीच में. नेटवर्क इशू है थोड़ा, इस वजह से. अच्छा, तो अब दिख रहा है आपको. LK मालूम है आपको क्या है? यस सर. क्या होता है LK? सर एल के जो होगा वो फ्रीक्वेंट आइटम सेट, फ्रीक्वेंट के आइटम सेट्स होगा. के आइटम सेट का मतलब क्या हुआ? यस सर. के आइटम सेट का मतलब क्या हुआ? सर those k items are occurring frequently in that set. ओके. के आइटम सेट, फ्रीक्वेंट के आइटम सेट का मतलब हुआ एक ऐसा फ्रीक्वेंट आइटम सेट है जिसमें के नंबर ऑफ आइटम्स हैं. दैट्स इट, राइट. के आइटम सेट is such a frequent item set which have k number of items. Is it clear? चीज समझ में आ गई. तो if LK then LK minus 1, LK minus 2, LK minus 3 up to L1, इसका मतलब क्या हुआ? अगर LK is a k frequent item set है, राइट, तो जो k minus 1 आइटम सेट होगा वो भी फ्रीक्वेंट होगा, k minus 2 आइटम सेट होगा वो भी फ्रीक्वेंट होगा, और इस तरह से L1 जो होगा मतलब 1 आइटम सेट वो भी फ्रीक्वेंट होगा, राइट. इसको मैं आपको करके बताता हूँ एग्जाम्पल से, आप लोग खुद इस चीज को समझ आएगा आपको. मान लीजिए कि मिनिमम सपोर्ट आपने डिसाइड करा, मिनिमम सपोर्ट इक्वल टू 12%. in a database
राइट। इसी सिमिलरली मिनिमम सपोर्ट है 12% पे, और 1000 ट्रांजेक्शन्स का डेटा सेट है, डेटाबेस है। तो इसमें फ्रिक्वेंसी ए की है 253, बी के 186 और सी के 338, राइट। एंड इफ आई से दैट फ्रिक्वेंसी है ए, बी, सी, फ्रीक्वेंसी है, तो बताइए ये ए बी सी जो है, इज इट फ्रीक्वेंट और नॉट? इट इज फ्रीक्वेंट, राइट? यस, इट इज ओवर 120। अच्छा, अगर ए बी सी फ्रीक्वेंट है तो व्हाट कैन यू टेल अबाउट ए सी? whether it will be frequent or not? Frequent, right? Why so? क्यों frequent है? बताएंगे सौरभ, why it is frequent? सौरभ, और कोई बताएगा? शानू? In frequent item set, all the subset are also frequent. ये कैसे पॉसिबल है? ओके ओके सौरभ, नो प्रॉब्लम। शिवांशु? शिवांशु गुप्ता? Yes, sir. Because in frequent set, all the sir similarly all one sir sir if LK is the is the item set of K item set. Similarly, LK minus one is the. देखिए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर ए बी सी फ्रीक्वेंट है, राइट, इफ frequent, then uh, then ABC frequent, AB must be greater than or equal to, right? So well, good luck.
इज इट क्लियर? ये चीज समझ आ गई? मान लीजिए ए बी सी की फ्रीक्वेंसी 129 है, तो ए बी की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 129 तो होगी ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि 138 लोगों ने ए बी खरीदा हो लेकिन सी ना खरीदा हो, राइट? और ए बी सी लेने वाले केवल 129 है, तो ए बी की फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 129. ऐसे ही बी सी की फ्रीक्वेंसी that will also be greater than or equal to 129. Or AC की frequency that will also be greater than or equal to 120. Is it clear? So if AB is frequent, ABC is frequent, then AB will also be frequent, AC will also be frequent, and BC will also be frequent. Is it clear? Is it clear to everyone? Shivanshu? Okay, fine. तो अब क्या है, इसमें एक लाइन और भी है कि दिस रिजल्ट्स इन कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन. कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन का मतलब क्या हुआ कि से you have been given a set of 3 items, right? A, B, C. You have been given a set of 3 items. A set of 3 items. Right? Right. So इससे आपने कितने सेट आपको पता चले जो फ्रीक्वेंट थे? Can you frame out those sets? अगर आप इसको हटा भी दीजिए, ABC को हटा दीजिए, तब भी कितने सेट आपको मिले? AB, then AC, कितने सेट मिल गए यहाँ पर? Now you got 6 sets, right? AB, AC, BC, AB और C. Right. For example, अगर मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें कि 100 एलिमेंट्स हैं. 100 एलिमेंट्स हैं and
minimum support is 1, right? And can you tell me how many frequent item sets will be there? Can you tell me? Anyone? Saurabh? Shivanshu? And what would be the value of n there? Hundred, right? तो ऑर्डर बता सकते हैं इसका क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 10 to power around 30, right? Around, it will be around 10 to power 30. So it will be such a huge number, right? So you cannot enumerate the item sets actually. You cannot write all those item sets because it will be such a huge number. Is it clear? ये चीज समझ आ गई? It will be that huge number that you cannot write it. So that was the meaning of combinatorial explosion, right? शुरुआत में तो आप बना सकते हैं, मतलब जैसे कि अपने ये है तो ऐसे आप 100 आइटम सेट्स तो बना सकते हैं। मीन्स जैसे ये L100 है तो यू कैन क्रिएट आइटम सेट्स टू L99, राइट? यू कैन ऑल्सो क्रिएट L98। तो जैसे वो वैल्यू पे की कम होती जाएगी, number of item set would be so huge that you cannot write them even, right? So it is known combinatorial मीन्स एक एक्सप्लोजन में क्या होता है? एनॉर्मस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, राइट? सो दैट इट रिजल्ट्स इन अ ब्लास्ट। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट आइटम सेट्स एक साथ क्रिएट होंगे कि it will be almost impossible to handle them. So it is known as combinatorial explosion. So other, if it is a combinatorial explosion, then how you can mine such item sets, right? इसके लिए एक तरीका है, माइनिंग एसोसिएशन रूल इज अ 2-step प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग फ्रीक्वेंट आइटम सेट को फाइंड करते हैं और फिर सेकेंड स्टेप में उससे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल फाइंड करते हैं। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन है उससे ओवरकम के लिए हम लोगों के पास दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, राइट?
concept of closed frequent item set. And concept of maximal frequent item. Closed frequent item sets क्या होते हैं? An item set X is closed in D. D क्या है? D is the database in study, right? जो भी आप database को study कर रहे हैं उसको हम D से represent करते हैं. तो बताया था मैंने. तो an item set X is closed in D if there is no proper super item set Y that Y has the same support count as X in D. मतलब क्या हुआ इसका? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया था ABC का, राइट? जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था ABC का. अब अगर मान लीजिए कि जो आइटम सेट ABC था उसका मान लीजिए फ्रीक्वेंसी सपोर्ट था 138, राइट? ये फ्रीक्वेंट आइटम सेट है. 120 was set as the minimum support, 138 था, तो it is a frequent item set, right? अब इसका सबसेट क्या हुआ? 3 सबसेट हुए इसके. 3, वैसे तो 6 सबसेट हुए, लेकिन मान लीजिए हम इसको ले रहे हैं. मान लीजिए इसकी सपोर्ट काउंट है 156, राइट? तो then AB is closed frequent item set. Why it is closed frequent item set? कौन बताएगा? तरन्नुम अंसारी. तरन्नुम अंसारी, yes please. Yes, sir. बता सकते हैं why it is closed frequent item set? तरन्नुम. Sir, I don't know. अरे अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी तो डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को. शेखर. शेखर. तनुश्री. तनुश्री गौतम. सृष्टि. मुझे लगता है ऐसा तो नहीं कि आपसे लोगों से पूछ करके टाइम में वेस्ट करता हूँ ऐसे. ये टाइम वेस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो कुछ रिस्पॉन्स करना नहीं है, मैक्सिमम लोगों को, राइट?
मुझे ये भी नहीं पता चलता है कि वेदर यू आर गेटिंग दिस थिंग्स और नॉट, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इवन आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट। ये वन वे डायलॉग चलता रहता है, इट्स मोनोलॉग की तरह मैं बात करता रहता हूँ सिस्टम से वैसे। सौरभ, शानू, 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 can you tell me why it is closed frequent item set? Sir, actually, I didn't get that point. So, Okay, मैंने बताया तो you should ask it before I ask the question to you. You should ask whatever you can't okay. get it, right? मैं तो हमेशा क्वेश्चंस को वेलकम करता हूँ आप लोगों से। कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन समझ में आ गया आपको? What was combinatorial explosion? शानू, Yes, sir. राइट? कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन क्या था कि जब ऐसे कॉम्बिनेशंस इतने लार्ज नंबर में बनने लगे कि आप उनको हैंडल नहीं कर पाए, सो दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन, राइट? Yes, sir. So to Okay, sir. overcome the problem of combinatorial explosion, we have the concept of closed frequent item sets and maximal frequent item set. क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट क्या होता है कि जब आपके पास एक ऐसा आइटम सेट है एक्स जिसका सुपर आइटम सेट वाई हो, और एक्स और वाई मतलब दोनों डी में हो, डी इज द डेटा सेट विच यू आर हैविंग, राइट? डी के सबसेट हैं एक्स और वाई, वाई इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स, राइट? डी के सबसेट हैं वाई, एक्स एंड वाई are set of D is the entire arrays, right? It's, राइट, एक्स और वाई दोनों डेटाबेस डी में है डिफाइंड, राइट? मतलब डी के सबसेट है दोनों, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, और एक्स और वाई की डिफरेंट सपोर्ट काउंट है या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक्स और वाई दोनों फ्रीक्वेंट हैं, राइट? तो एक्स इज अ क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट। इज इट क्लियर? यहाँ पर मान लीजिए कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था
ये एग्जाम्पल मैंने लिया था यहाँ पर कि ए बी सी इस आइटम सेट की फ्रीक्वेंसी है 138, ए बी की फ्रीक्वेंसी है 156 और मिनिमम सपोर्ट है, मिनिमम सपोर्ट वॉज 120। तो ए बी इज फ्रीक्वेंट आइटम सेट, उसका जो सुपर सेट है ए बी सी, इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंट आइटम सेट, और ए बी सी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, है ए बी भी उस फ्रीक्वेंट आइटम सेट। ये क्लियर हो गया? चीज समझ आ गई हो? शानू is it clear? Right. So, and for maximal frequent item set, we may have one more thing. For maximal frequent item set क्या होता है? Maximal frequent item set होता है कि an item set X is maximal frequent item set। मान लीजिए कि ये जो frequency अगर if the frequency let तो ABC की फ्रीक्वेंसी है तो इतनी होगी, राइट? तो AB का सुपर सेट होता है या नहीं हो रहा है? शानू Yes, sir. शानू तो ये Yes, sir. AB का सुपर सेट होता है या नहीं हो रहा? Whether in this case, if ABC having frequency 113, then will it be a superset of AB or not? Yes, sir. You're not sure, it seems. Are you sure or not? Yes, sir, Shanu? it is. Yes, sir. Yes, sir. It is, sir. It is a superset AB of का AB. superset होता है, right? लेकिन since Yes, it is sir. not a frequent, right? Since this ABC is not a frequent item set, right? Because its की जो frequency है that is less than the minimum support. All right. Since is not frequent, in this case, so maybe maximal is it clear? क्योंकि ए बी का कोई भी प्रॉपर सुपरसेट डी में फ्रीक्वेंट नहीं है, राइट? अच्छा, मान लीजिए अगर एक चीज और होती, ए बी सी की फ्रीक्वेंसी है 113,
uh, अब बताइए, कैन यू टेल मी? उस केस में मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट होता है या नहीं? बताइए शानू। शानू, Yes, sir. इस Sir, केस I में didn't अगर get the question, sir. Can देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी जो है उसकी फ्रिक्वेंसी है 113, मिनिमम फ्रिक्वेंसी है 120, और ए बी दूसरा सेट है उसकी फ्रिक्वेंसी है 159, और ए बी जो है उसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए 1 समथिंग 166, राइट? ए बी की फ्रिक्वेंसी है 66। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन है कि वेदर इन दिस केस ए बी जो है वो क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट या मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट में क्या होगा? इज बी अ मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट? और the closed frequent item set. क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट होता है, राइट? मैक्सिमल नहीं होता। Yes, sir. बताएंगी क्यों? Because, sir, it's not a frequent item set. Why? That is not a frequent item set. Actually, देखिए sir, the ऐसा तो reason behind why I said closed frequent item set is that both of them have different frequencies. देखिए सिंपल सी चीज है कि अगर कोई सेट है और उसका कोई सुपर आइटम सेट है, सुपर आइटम सेट है, Yes, sir. और दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है और दोनों फ्रीक्वेंट है। यहाँ पर इसका Yes, जो sir. ए बी है उसका एक सुपर आइटम सेट है ए बी डी, राइट? और दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट Yes. है। ए बी डी की फ्रीक्वेंसी है 159 और ए बी की फ्रीक्वेंसी है 166। दोनों की फ्रीक्वेंसी Hmm. डिफरेंट है और दोनों फ्रीक्वेंट आइटम सेट है। बिकॉज उनकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 120 है, तो क्या हुआ कि जो ए बी है इट विल बी अ क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, राइट? इट विल बी अ क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, क्योंकि उसका एक प्रॉपर सुपर आइटम सेट है, वो भी फ्रीक्वेंट है। दैट्स व्हाई ए बी विल Okay. आल्सो बी अ क्लोज्ड फ्रीक्वेंट आइटम सेट, राइट? But AB will not be a maximal frequent item set. Why? Because AB, because of the same reason. AB has a frequent item set. AB has a super item set, a proper super item set, which is frequent as well. That is why it will not be a maximal frequent item set. Right? So I think it would be clear. बताइए शरण, don't want to ask anything? So Shanu? can you please explain that part why it is not maximal frequent item set? हाँ, okay. Uh, AB will not be a maximal frequent item set because it has a proper super item set which is frequent as well. For AB to be a maximal frequent item set, it must be it must be it must have a proper frequent it must have a proper
super item set which must not be frequent. अगर इसका जो सुपर आइटम सेट है अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं होता, राइट, अगर वो फ्रीक्वेंट नहीं होता उस केस में एक मैक्सिमल फ्रीक्वेंट आइटम सेट होगा। राइट, ओके सर, चलिए दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसको हम थैंक यू एक सर। एग्जांपल और देंगे so that you can get it very clearly, right? So attendance आप लोग बोल दीजिएगा। सेक्शन सी, सौरभ, शानी जोसेफ, सर 133। ठीक है, जो अटेंडेंस बोला जाए वो अपना लॉग ऑफ कर सकते हैं। सौरभ निरंजन, ओके ओके सौरभ, फाइन। शिवांशु गुप्ता, Yes, sir. 143. 143। शुभी मिश्रा, Sir, 148. शुभी आज आप क्वेश्चन पूछते ही लॉग ऑफ हो रही थी क्या? कुछ कोइंसिडेंस था या फिर कुछ डेलिबरेटली था ऐसा? शुभी, Yes, sir. आज आई हैव नोटिस कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा था आप लेफ्ट हो रही थी। सो व्हाट इज डेलिबरेटली और इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस? No, sir, it's some issue actually. आपकी आवाज़ ना बहुत प्रॉब्लम कर रही थी आज, बीच बीच में काफ़ी ब्रेक हो रही थी, तो मुझे लगा शायद सिर्फ मेरी तरफ से इस वजह से बार बार लॉग आउट होके फिर से इन कर रहे थे। चलिए, सुलेखा गौतम, 155 sir. ओके, सिद्धार्थ शुक्ला, 149 sir. ओके, सौम्या दीक्षित, 120 sir. 120। Yes sir. 20. ठीक है ठीक है ठीक है। श्रुति कुमारी, Sir 164. ठीक है, ओके। शशांक यादव, शशांक यादव, Yes, sir. 135. ओके ओके ठीक है, फाइन। 35. ठीक है शशांक। सिमरन गुप्ता, Sir 152. ऑलराइट। सौरभ वर्मा, सौरभ कुमार वर्मा, सूरज विश्वकर्मा, Yes, sir. 158. ठीक है सौरभ। शैलेश यादव, 131 sir. ठीक है शैलेश। शेखर, शेखर त्रिवेदी, शशांक यादव, शशांक यादव,
वैभव कटियार 170 sir. 170. 170. ओके वैभव, ठीक है बेटा। उमंग कश्यप Sir, 169. 169, Yes, sir. ठीक है बेटा। ओके। तरन्नुम अंसारी Sir, 193. 193। अच्छा, पहली बार आई हो क्या क्लास में? Yes, sir. क्यों? सर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी एक्चुअली, घर में कुछ लोगों को कोरोना हो गया था। आप ठीक हैं सब? यस सर, अब ठीक है। चलिए। वैष्णवी ऋषभ सिंह 4456. ठीक है, ठीक है। सकलैन मासूम Sir, 165. शालिनी सोनकर 122।